So the next topic we are starting is transpose of the matrix. So very first thing, what is transpose of a matrix? Transpose basically होता क्या है? If we have a matrix A that can be of any order, that can be rectangular matrix, square matrix, row matrix, column matrix, any type of matrix is there. For example, I am taking a matrix having order 2 by 3. This is 1 2 3 minus 5 0. The order of this matrix is 2 multiply 3. If we have to find out the transpose of this matrix, then that will be a raised to the power t. That means a transpose, or we can write it like this also, a complement. That will be equal to whatever the first row is there, just convert that first row into first column. So you will be having 1 2 3 in place of first column instead of first row. तो जो फर्स्ट रो में था उसकी जगह पे हमने फर्स्ट कॉलम लिख दिया. सेकेंड रो दैट इज -3 -5 0, उसे हमने सेकेंड कॉलम में लिख दिया. सो अभी जो मैट्रिक्स बन के आया इसका ऑर्डर जस्ट टोटल अपोजिट हो गया पहले वाले का. द प्रीवियसली इट वाज 2 into 3 बट नाउ इट इज 3 into 2 बिकॉज पहले 2 rows 3 कॉलम था, अब यहाँ पे 3 rows एंड 2 कॉलम है. दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. There are some properties of transpose. Some properties of transpose. So there are some properties, like first property, A plus B whole transpose must be equal to A transpose plus B transpose. Means हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें और ऐड करने के बाद जो निकलता है उसका ट्रांसपोज करें, या फिर हम ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करें, द रिजल्ट विल बी सेम. सेकेंड, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. ए माइनस बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. हम दोनों मैट्रिसेस को माइनस करने के बाद ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके माइनस करें, रिजल्ट विल बी सेम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज दैट मस्ट बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम ए बी सीक्वेंस देखो, ए बी है, ए पहले है बी बाद में है, उसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज. मींस दोनों को इंडिविजुअली ट्रांसपोज करें तो वो आगे पीछे लिखे जाएंगे. मींस जो आगे था वो पीछे, जो पीछे था वो आगे. तो इट वाज ए बी इन अ सीक्वेंस, नाउ इट विल बी बी ए इन अ सीक्वेंस. वी कैन वेरीफाई ऑल दीस प्रॉपर्टी बाय टेकिंग एनी टू मैट्रिसेस एज एन एग्जांपल. अभी क्वेश्चंस आएगा उसमें भी हम ये चेक कर लेंगे. सो वी हैव फोर्थ पार्ट, fourth property, that is when we find out transpose of a matrix, the result will be 1 A only. जो previous matrix था वो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसके आंसर का दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है जो पहले था, that is A. And the last property, if we multiply any scalar value in a matrix, then we find out the transpose, or we find out the transpose of a matrix, then we multiply with the scalar value, result will always be same. So these are some properties of transpose of a matrix, and now on the basis of these property we can have an example. So in this example, that is the example from my side, that is not in the NCERT in fact. A matrix is given and B matrix is given, and these are the four parts. We have to verify these parts. The first part is verify that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. So first part, we have to verify that A plus B transpose. So firstly we will find out A plus B. मैंने left hand side पे किया, I'll find out A plus B. A plus B means A matrix, that is 1 2 3 minus 4, plus B means B matrix, that is -2 -1 0 and 2. This is A plus B. तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो जब इसे ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा A plus B is equal to 1 minus 2 that is -1, 2 minus 1 that is 1, 3 plus 0 that is 3, minus 4 plus 2 that is -2. This is A plus B. अभी हमने A plus B फाइंड आउट किया. Now I'll find out A plus B transpose. Now A plus B transpose will be, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, A plus B transpose. नाउ आई टेक राइट हैंड साइड, एंड द राइट हैंड साइड इज A transpose plus B transpose. So for that we have to find out A transpose.
A matrix is this, इसका ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो विल कन्वर्ट टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल कन्वर्ट टू सेकंड कॉलम, प्लस B matrix is this, first row will be converted to first column, second row will be converted to second column. So this is A transpose plus B transpose. When we add these two, we'll be having 1 minus 2, that is minus 1, 3 plus 0, that is 3, 2 minus 1, that is 1, minus 4 plus 2, that is minus 2. Now you will check it out, जो हमारा result right hand का निकला वही same result हमारा left side का भी निकला. It means left hand side is equal to right hand side, hence verified. So we have verified the first part. Similarly, we can go for second part, third part and fourth part. मैं इनमें से एक part और करा देता हूँ. Let's say मैं part number second ले लेता हूँ. This is A multiply B transpose. तो पहले मैं left hand side के लिए A multiply B निकालूंगा. A multiply B means A matrix, that is 1, 2, 3, minus 4. Multiply B matrix, that is minus 2, minus 1, 0 and 2. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -2 + 0, दिस इज -1 + 4, दिस इज -6 + 0, दिस इज -3 -8. सो -2, दिस इज 3, दिस इज -6, दिस इज -11. ये हमारा A मल्टीप्लाई B आ गया. अभी मैंने A मल्टीप्लाई B निकाला, अभी मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. So A multiply B transpose, that will be equal to -2, 3, -6 and -11. Abhi I have taken left hand side only. Now I will take right hand side. And the right hand side is B transpose multiply A transpose. Now B transpose is -2, -1, 0 and 2. मैंने ट्रांसपोज कर दिया B मैट्रिक्स का. Similarly multiply A transpose. So I am multiplying this transpose 1, 2, 3 and -4. Now we'll multiply these two matrices. So B transpose into A transpose is equal to, this is -2 plus 0, -6 plus 0, -1 plus 4, -3 -8. So B transpose A transpose is equal to -2, -6, 3 and -11. Now when you will check it out, the left hand side and the right hand side both are giving the same answer. Hence, AB transpose is equal to B transpose into A transpose. Verified. So this is the way how we can verify these properties as that given in the example. Now we have two more concepts. One is symmetric matrix and another is skew symmetric matrix. So very first thing, what is symmetric matrix? A square matrix, as I have written here, a square matrix is called symmetric matrix if A transpose is equal to A. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पे बात सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की हो रही है. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब उसका ट्रांसपोज करने पे वापस से घूम के वही मैट्रिक्स आ जाए. देन वी विल से दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, we have a matrix A, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6. This is the matrix of order 3 by 3. अभी देखने यहां पे एक मैजिक ही है ऑब्वियसली. द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या है? आप ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ये, दैट इज 1, 2, 3. मैं उसे फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूं 1, 2, 3. इसकी सेकंड रो देखो क्या है 2, 4, 5, तो मैं इसको सेकंड कॉलम में लिख रहा हूं 2, 4, 5. इसकी थर्ड रो देखो क्या है 3, 5, 6, मैं इसे थर्ड कॉलम में लिख रहा हूं 3, 5, 6. जब मैंने इसका ट्रांसपोज करा, अब मैजिक ये है, जब मैं इसके रिजल्ट को देखूंगा तो एग्जैक्टली सेम वही होगा जो मेरा ए मैट्रिक्स था. दिस इज द मैजिक कि ए का ट्रांसपोज करा और वापस वही निकल के आ गया जो ए मैट्रिक्स है. अगर कभी ये मैजिक हो पाए आपसे, तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो मैंने यहां पे लिख दिया कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? जब उसका ट्रांसपोज करने पे वापस वही मैट्रिक्स आ जाए. इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम एज दैट मैट्रिक्स, दैट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Similarly with the second one, skew symmetric matrix.
तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यहां था ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यहां पे है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वापस वही आ जाए बट माइनस साइन के साथ, तो वो मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, दैट इज 0 1 2 1 0 3 2 3 0 minus minus and minus. Now just check it out. This is A matrix. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी ना एक कंडीशन होती है, इसमें जितने भी मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो हमेशा जीरो होते हैं ऑलवेज। तो ये मैट्रिक्स हमें चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज करने से क्या होगा, फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम। तो यहां फर्स्ट रो है 0 1 -2, मैंने उसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो है -1 0 एंड -3, मैंने उसे सेकंड कॉलम में लिख दिया। थर्ड रो है 2 3 एंड 0, मैंने उसे थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो ये जो रिजल्ट निकल के हमारे पास आया है, ये मैट्रिक्स और जो पहले वाला मैट्रिक्स था उनमें सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी सारी वैल्यूज सेम है। जहां प्लस होना चाहिए वहां माइनस है, जहां माइनस होना चाहिए प्लस है। तो मैं इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो अगर पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले ले तो अंदर सारे साइन बदल जाएंगे। सो इट विल बी 0 1 -2 -1 0 -3 2 3 एंड 0। तो प्लस जो भी प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, क्योंकि बाहर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। तो अब जो अंदर बन के आ रहा है वो एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमारा क्वेश्चन गिवन था। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जब ए का ट्रांसपोज करा तो वापस से माइनस ए आ गया। सो हियर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे जो ए है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3। So this exercise 8th question, for the matrix A, verify that A plus A transpose is a symmetric matrix. And the second part, A minus A transpose is a skew symmetric matrix. तो मैं इनमें से एक पार्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। हमें वेरीफाई करना है कि A plus A transpose एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए कि वो है या नहीं है, हम उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो उसके लिए पहले हमारे पास मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे ए को थोड़ी वेरीफाई करना है, यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज को वेरीफाई करना है। तो पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहले लेट एक्स बी ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैंने एक्स मैट्रिक्स को ए प्लस ए ट्रांसपोज एज्यूम कर लिया। नाउ ए मैट्रिक्स इज 1 5 6 7 प्लस इसका ट्रांसपोज 1 6 5 7। तो जब मैंने एक्स फाइंड आउट किया, दिस इज 2 11 11 14, ये मेरा एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक वेरीफाई करने के लिए पहले हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो विल कन्वर्ट टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल कन्वर्ट टू सेकंड कॉलम। तो अब चेक करो जो रिजल्ट निकल गया है, क्या वापस वो x के इक्वल आ रहा है? तो यस, इट इज सेम एज x। तो अगर x का ट्रांसपोज x आ रहा है, हेंस x that is A plus A transpose is a symmetric matrix. And with the same step we can go for our second part, that is A minus A transpose is a skew symmetric matrix. उसमें क्या करेंगे, let x be या फिर y ले लेंगे क्योंकि x ऑलरेडी ले चुके हैं। let y be A minus A transpose, then y is equal to this A minus A transpose। उन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, वापस सेम वही आ जाएगा बट विद माइनस साइन। सो विल से दैट हेंस y that is A minus A transpose is a skew symmetric matrix. So the second part is there for you only. So one more thing is that एक मैं स्टेटमेंट लिख पा रहा हूं आपको, a square matrix A, यहां बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का, a square matrix A can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सच एज A is equal to 1 by 2 A plus A transpose plus 1 by 2 A minus A transpose, where this one A 1 by 2 A plus A transpose ये रिप्रेजेंट करेगा सिमेट्रिक को, और ये 1 by 2 A minus A transpose ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को।
तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, उसमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, तो एक पार्ट में अपनी तरफ से बना के कर रहा हूं। सो दिस इज मैट्रिक्स ए, और ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करिए दो मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्मेट में, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता हो। तो लेट एक्स बी द सिमेट्रिक and y be the skew symmetric matrix. Then A can be represented as x plus y, where x is equal to 1 by 2 A plus A transpose and y is equal to 1 by 2 A minus A transpose. दिस इज द सेम व्हाट आई हैव रिटन ओवर देयर, मैंने ऊपर भी यही लिखा है, बस यहाँ पे मैंने उसको x और y एज्यूम कर लिया। तो a को हम x प्लस y के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे x होगा 1 by 2 a प्लस a ट्रांसपोज और y होगा 1 by 2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो पहले मैं x निकालता हूं, 1 by 2 a प्लस a ट्रांसपोज, दैट इज 4 minus 3 2 minus 1 प्लस इसका ट्रांसपोज 4 minus 3 2 minus 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, सो 4 plus 4 8 minus 3 plus 2 that is minus 1, 2 minus 3 that is minus 1, minus 1 minus 1 that is minus 2। अभी मैं 1 by 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट विल बी 4 minus 1 by 2 minus 1 by 2 and this is minus 1। तो ये हमारा x मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली आई विल फाइंड आउट y, 1 by 2 a minus a ट्रांसपोज, तो 4 minus 3 2 minus 1 minus 4 2 minus 3 minus 1। अभी हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 by 2 4 minus 4 that is 0 minus 3 plus minus 2 that is minus 5 2 minus minus 3 that is 5 minus 1 plus minus 1, तो minus 1 plus 1 हो जाएगा, that is 0। अभी 1 by 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 minus 5 by 2 5 by 2 and 0। so this is matrix x and this is matrix y। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप वापस यही आ जाएगा, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, बट माइनस साइन के साथ। इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज द सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो हेंस ए कैन बी रिटन एज x प्लस वाई मीन्स 4 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 plus 0 minus 5 by 2 5 by 2 and 0। सो मैंने ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया एज अ सम ऑफ टू मैट्रिक्स, जिसमें से एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो कि सिमेट्रिक है, दूसरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो आपने किया है वो ठीक है या नहीं है। आप अगर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद वापस ए आएगा, 100% श्योर है। अगर ए नहीं आता इट मींस आपने कहीं मिस्टेक किया है, यू विल हैव टू चेक इट आउट अगेन। बट इसको चेक करके ऐड करके शो नहीं करना है, वो चेक करेंगे माइंड में अपने लिए, या रफ में करेंगे बट अपने लिए, यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है। अगर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि द क्वेश्चन इज आस्किंग एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स ए को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस करना है, मतलब वो दो अलग अलग मैट्रिक्स का ऐड करके दिखाना है, उसको ऐड करके रिजल्ट नहीं लिखना, ऐड के फॉर्मेट में ही शो करना है उसको। सो दैट वाज द कंप्लीट एक्सरसाइज। अब इस पूरे कंसेप्ट के बाद हमारी ये जो एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज टोटली फिनिश। नाउ यू कैन ट्राई दिस एक्सरसाइज।